Good evening, friends. Today, our senior motivational speaker, Sri R.K. Sanaji, is going to deliver his message to his son on his birthday regarding the very important topic how to control the sense organs. Hopefully, this message is not only for his son but for all of us. So we should learn out of his talk today. Thank you very much. I hand over the mic to him. Thank you. थैंक यू वर्मा सर। और मैं समझता हूँ कि आई कैन स्पीक विदाउट माइक ऑल्सो एज द intensity of my voice is not a nominal one. Anyway, so now the topic is seems to be very personal. That message to my son on the eve of his birthday celebration, which is falling on 16th December. But as because he is residing in Australia, and that Australian clock is 5 hours 30 minutes advance to India, and hence he is going to celebrate his birthday just right after 2 hours. Means the moment here 6:30 would be there in Australia, that would be 12 o'clock, 16th December. So don't think it is a personal message. This is a message from a father to his son, and this can be accepted in general also. So I wish every father should deliver educative message to his son to make him aware of not only the day-to-day problem but also how to live, how to utilize what for his birth is, how he is going to spend his days, how to go grown up, how to be a good citizen, how to know the family, how to know the gaon, society, the shahar, the desh, and in totality the universe. So this is a generalized message. Of course I am particularizing it, but with due request, folded hand, I am requesting all fathers to say in the similar fashion, to educate in the similar fashion to their son also. And whosoever young people, including yourself, you people are sitting here, every young people should learn that this is for you also. And I think this will be educative, and if it is educative, please give your remarks, how you would you feel it, and like must be there. And the most and important, if you are new one, then subscribe it. If you are going to subscribe, if you are going to mention some comment, it will boost my morale, and I would be with new videos on new topic if you will boost my morale. Thank you, gentlemen. So let us go ahead. So मैं R.K. सिन्हा, retired general manager Coal India. Basically I am an engineer, and hence engineers are normally known for their analytical views, analytical idea, and I am one of them. I am also having that analytical vichar, and that's why whatsoever I am going through the kitab, books, rituals, spirituals, every damn thing I am visualizing analytically.
and only because of that, the gist, the arc of those knowledge I am giving you. So, just I am starting with the words, my son, be happy, be generous to your juniors, be familiar to your all friends, help to the needy person, and be a good citizen, a good family member, a good country member. सो ये जो तुम्हारा दिन है, ये जो तुम्हारा जन्मदिन है, ये वो दिन होना चाहिए जिस दिन तुम कैलकुलेट करो कि कितना गोल में बाकी है, कितना गोल तुम अचीव कर चुके और कितना और अचीव करना है. दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन. व्हाट आर द थिंग्स विच इज लेफ्ट एंड व्हाट आर द थिंग विच यू हैव ऑलरेडी grabbed. So don't get yourself stopped at any moment by any problem. Get it solved. So आज मैं तुमको एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ से परिचय कराने जा रहा हूँ. राइट फ्रॉम बर्थ टू हाउ टू लिव विद इन द सोसाइटी. दैट इज, जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, तो उसके अंदर प्रकृति जो है या परमात्मा जो है, सुपर नेचुरल जो है, जिसने हमें यहाँ बना करके भेजा है, वो एक सेंस बना करके देता है, दिमाग एक देता है. वो दिमाग ऑफ कोर्स नोन एज अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड. इस सबकॉन्शियस माइंड में एक प्री प्रोग्राम चिप्स भरा रहता है. ये प्री प्रोग्राम चिप्स आपके शरीर के टोटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, चलाता है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है जिस अंग को, उस अनुसार डेवलप करता है. हार्ट को पंप कितना ब्लड करना है, किडनी को कितना फिल्टर करना है, लंग्स को कितना एयर से ऑक्सीजन निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्लड में मिक्सअप करना है. और इस पूरे शरीर में अगर 60-65 ट्रिलियन जो जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन सबों का भोजन पहुंचाना, ये सारे चीज़ प्री प्रोग्राम चिप्स में डाल करके आपके दिमाग में डाला हुआ है. तो ये माँ के गर्भ से शुरू होता है, हार्ट बीट कितना होगा, और ये सारे जो सेल्स हैं, इन सेल्स का भोजन कैसे होगा, इन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा. तो ये है आपका एक चिप्स में डाला हुआ. लेकिन इसके अलावा भी 2 सेंस बाय बर्थ ऊपर वाला देता है. ये 2 सेंस है. एक तो है स्वार्थ और दूसरा है वासनाएं. वासना का मतलब, डोंट गेट डेविएटेड, वासना का शुद्ध अर्थ जो होता है वो इच्छा होती है. इच्छा, सिंपल वर्ड में वासना मतलब इच्छा. और स्वार्थ, स्वार्थ का तो सीधा सीधा अर्थ है लोभ. तो हर बच्चा जो जन्म लेता है वो बाय नेचर स्वार्थी होता है. हर बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, हर बच्चा जो जन्म लिया इस प्रकृति के द्वारा, इस संसार में जब आया, तो वो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो स्वार्थी होता है. और उसके अंदर इच्छाएं भी होती हैं. अब आप कहेंगे स्वार्थी होता है तो इतने बड़े बड़े साधु संत कैसे हो गए, इतने बड़े बड़े परोपकारी जीव कैसे हो गए, कहाँ से आ गए? अगर बच्चा में ही जन्म से ही स्वार्थी है तो ये कैसे बना? तो आइए इसके लिए हम लोग थोड़ी आगे चर्चा करें. आगे क्या चर्चा करना है? स्वार्थ का अर्थ क्या है और स्वार्थ कैसे मैं कह रहा हूँ कि बच्चे स्वार्थी होते हैं, इसको एनालाइज किया. As because you are listening from an engineer, so have analytical approach over this issue. एक छोटे बच्चे को देखें, वो जैसे ही अपने सेवा शुश्रूषा करने वाले, हाथ सहलाने वाले हाथों को पहचानता है, गोद को पहचानता है, उस गोद से वो चिपक जाता है. वो नहीं जानता है
कि जो हाथ हमको सहला रहा है, जो गोद हमको मिल रहा है, वो माँ ही है। वो सिर्फ जानता है कि ये हाथ मुझे सहला रहा है, ये गोद मुझे उठा रहा है, ये मुझे भोजन करा रहा है, तो चाहे वो कोई भी हो, भर में भी, उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, बड़ी बहन हो, उसकी चाची हो, ताई हो, मामी हो, नानी हो, काकी हो, वो उस गोद में जब जाता है तो उसको प्लेजर का अनुभव होता है। तो ये जो फर्स्ट प्लेजर होता है, उससे वो चिपक करके रह जाता है। अब जैसे जैसे बड़ा होता है, उस गोद को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है। उसी गोद में उसको सब कुछ मिलने लगता है। तो ये जो स्वार्थ था उसका, ये स्वार्थ उसका क्या है? किस चीज के लिए स्वार्थ हुआ? प्लेजर का स्वार्थ। वो उस गोद में जाने के बाद जो प्लेजर अनुभव कर रहा है, उस प्लेजर के लिए वो उससे चिपका हुआ है। धीरे धीरे उस गोद के अलावा और दूसरे गोदों को भी पहचानने लगता है, और पहचानते पहचानते वो अपने भाई बहन, अपने पिता को, सबको पहचानता है। तो उस परिवार के सारे गोद उसमें जैसे लगता है कि उसका रजिस्टर्ड हो गया, कॉपीराइट हो गया। अगर कोई दूसरे बच्चे को, अगर किसी ने उठा लिया अपने गोद में, तो बच्चा मचल उठता है कि नहीं, उसको उतारो, मेरे को दो। ये है उसका स्वार्थ। और ये स्वार्थ किस लिए है? ये स्वार्थ है सिर्फ और सिर्फ प्लेजर। तो ये सारा प्लेजर का खेल है। और उसके साथ साथ एक और चीज है, जो दूसरी चीज आती है बाय डिफॉल्ट, दैट इज वासनाएं, मीन्स इच्छा। इस इच्छा को, मतलब वो हर चीज चाहता है कि ये मेरा ही है। जो चीज को वो पा लिया, जिस चीज को हाथ में ले लिया, जिस चीज से वो परिचित हो गया, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अगर कोई खिलौना से खेल रहा है और दूसरा बच्चा आ गया, उसके खिलौना के साथ वो अगर खेलना शुरू करता है, तो जो जिस बच्चे का खिलौना होता है, वो वहां पर अपना नाटक करना शुरू कर देता है, रोना धोना शुरू कर देता है। या अगर उसको पसंद आ गई किसी दूसरे बच्चे की खिलौना, तो किसी ढंग से उसको लेना चाहता है। उसके लिए उसके पास कोई नैतिकता नहीं रहती है। वो बाई चोरी, बाई डिफॉल्ट, किसी भी ढंग से इच्छा होती है कि ये चीज मेरी हो जाए। अगर माँ बाप बहुत बड़े भी हों, बड़ी गाड़ी से उतरे हों, मर्सिडीज से उतरे हों, मार्केट में गया, अब बच्चा को जो चीज पसंद आ गया, वो उसको लेना ही चाहेगा। चाहे जितना लोग माँ बाप समझा लें, वो नहीं मानेगा। चाहिए तो बस चाहिए, और अभी चाहिए तो अभी चाहिए। और अगर माँ बाप नहीं देते हैं, तो बिना किसी चीज की परवाह किए वहीं धूल में लेट ले जाएगा। इसको सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने एक नाम दिया। इसका नाम दिया ईड, EID, ईड। ये दिमाग का वह रूप है जहाँ पर जाकर के जिद होती है और पाने की इच्छा होती है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद जो हो। और स्वार्थ क्या होता है उस इच्छा के साथ? प्लेजर। स्वार्थ होता है प्लेजर। अब बाय डिफॉल्ट दूसरा नेचर हो गया इच्छा। तो इच्छाओं को पूरा करने में दैट फेलो, दैट बॉय, दैट चाइल्ड इज गेटिंग प्लेजर, and only because of that he is doing all the drama. And this drama, the state of mind of this child is called ईड, EID, ईड। इसका नाम दिया किसने पहले? सिगमंड फ्रायड ने। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां से जब आगे, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उस बच्चे का सेंस बढ़ता है, घर में संस्कार दिया जाता है। घर के माँ बाप, परिवार, सब लोग उसको अपने, जो जिसको कह रहा है, जिनको वो अपना समझ करके, जिनसे चिपटा हुआ है प्लेजर पाने के लिए, वो धीरे 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 उसके कॉन्शियस माइंड में कुछ ज्ञान देना शुरू करते हैं, और ये ज्ञान ही उसका संस्कार के रूप में परिवर्तित होता है। अब देखता क्या है बच्चा, कि जो कुछ भी था, इससे हमारा दायरा बढ़ रहा है। और बगल वाले काका जी के भी गोद में जाकर के प्लेजर पाने लगा, बगल के काकी से भी प्लेजर पाने लगा। बगल की काकी हो सकती है वो टॉफ़ी दे दी हो, तो उस टॉफ़ी के लिए भी वो लालायित हो जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो उसका जो परिवार, जो माँ बाप और बहन से उसका जो दायरा है, वो बढ़ जाता है। और मोहल्ले में
हर घर में जा कर के जहाँ से उसको कुछ मिलता है वहाँ पर वो चिपक जाता है। उसके ऊपर जब बड़ा होता है तो फिर जो ज्ञान अर्जन करते जा रहा है, लोग जो उसके अंदर संस्कार देते जा रहे हैं, समय समय पर उसको जो बताते जा रहे हैं कि समाज में कैसे रहा जाए, तो ये भी उसको ज्ञान होते जाता है। लेकिन लोग बताते क्यों हैं समाज के बारे में? उसका एक ही कारण है कि मनुष्य बाय बर्थ सबसे लाचार प्राणी होता है। मनुष्य अगर बर्थ के समय गोद नहीं मिला तो वहीं पर मर जाएगा, और जन्म देने के लिए भी माता को कुछ न कुछ सहायता की जरूरत पड़ेगी, और सहायता के साथ साथ उस बच्चे को बड़ा करने के लिए भी सहायता चाहिए। इसलिए मनुष्यों ने एक समाज का निर्माण किया, और समाज के निर्माण करने में हर आदमी उस समाज में कुछ नियम कानून बनाया। नियम कानून बना करके उस सबको बाध्य किया गया कि इस नियम को पालन करो, ताकि हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके जब जरूरत पड़े तो। ये बच्चा धीरे धीरे उस नियम से अवगत होते जाता है। जैसे ही अवगत होता है तब उसके लगने लगता है कि मेरी जो इच्छा है, ये इच्छा दूसरों को अच्छी नहीं लग रही है पूरा करने में, तो क्या करता है, थोड़ा सा कनिंग बन जाता है। कनिंग बन करके जो उसका माइंड का स्टेट होता है उसका नाम है ईगो। ईगो में क्या है, चाहिए तो हमको वही चीज चाहिए जो हमको पसंद है, जो हमको जिससे प्लेजर मिल रहा है, लेकिन अब उसके लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा, तरकीब सोचना पड़ेगा, और ये तरकीब मास्टर हो जाता है। अगर वहाँ पर बच्चे को सुसंस्कृत कर दिया जाए, अगर बच्चे को सही ढंग से गाइडेंस दे दिया जाए, तो वो गलत रास्ते पर जाने से, निगेटिव प्रॉपर्टीज में जाने से पहले वो संभल जाएगा, और शायद उसका ईगो सुपर ईगो में बदल जाएगा। जो सुपर ईगो में जब जाएगा, जो उसका माइंड उस स्टेट में जाने के बाद सुपर ईगो कहता है कि नहीं, एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। समाज का हर आदमी हमको कहीं ना कहीं बड़ा होने में मेहनत किया है, हमको सहयोग किया है, हमको कहीं ना कहीं कोई एडवाइस किया है, हमको सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत लोग चिंतित थे। हमारे आसपास माँ बाप ही नहीं, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा परिवार हमको किया, हमारा देश हमारे लिए बहुत कुछ दिया। हम जो पढ़े लिखे उस स्कूल कॉलेज में, उस स्कूल कॉलेज का फंडिंग भी हमारा देश ही किया था। हमारे देश के लोग हमारे साथ हैं, तो उसका जो दायरा है, समाज माँ बाप से निकल करके परिवार में जाता है, परिवार से निकल करके समाज में जाता है, और समाज से निकल करके पूरा देश में जाता है। और ये जैसे जैसे उसका सुपर ईगो का लेवल बढ़ते जाएगा, वो पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझेगा, और वहीं से होगा वसुधैव कुटुंबकम। अब इसमें आता है, इसके साथ साथ 5 सेंस ऑर्गन दिया हुआ है मनुष्यों के पास। किसी भी मनुष्य के पास, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, उसके पास 5 सेंस ऑर्गन है। ये पांच सेंस ऑर्गन जो है वो कौन कौन है? आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इन्हीं पांचों के द्वारा मैसेज रिसीव होता है, और ये मैसेज जाता है दिमाग को। अब इस दिमाग और इंद्रियों के बीच एक और ऑर्गन काम करता है, जो फिजिकली तो नहीं है, लेकिन उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, दैट इज मन। तो शरीर को इन्फॉर्म रखने के लिए, शरीर को गवर्न करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां दी गई है, 5 सेंस ऑर्गन मिला है, प्रकृति ने प्रदान किया है। ये 5 सेंस ऑर्गन कहें या 5 यंत्र कहें, इन 5 यंत्रों के द्वारा करीब करीब सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आदमी को मिल जाता है। और ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो देती हैं, सेंस करती हैं, वो जाता है सीधा मस्तिष्क, और मस्तिष्क उसको एनालाइज करता है। लेकिन मस्तिष्क शब्दों में या अनुभव से नहीं सुनता है, मस्तिष्क हर चीज को पिक्चराइज करके देखता है, फोटो देखता है। अब ये फोटो जो है, ये फोटो बनाने का काम करता है मन। मन अपने अनुसार जो इच्छाओं के ऊपर बेस है,
जो बाई डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मिला हुआ है मनुष्य को, इच्छा, वासनाएं, उनके अनुसार एक फोटो बना लेता है। ये फोटो पहले से मस्तिष्क में पड़ी हुई है। अब जब यंत्र जो दिया उसको इंफॉर्मेशन, तो दोनों फोटो सुपर इम्पोज होता है, और सुपर इम्पोज होकर के वो जो आदमी है, वो जो बच्चा है, उसी के अनुसार अपना एक्ट करता है। तो अब क्या बात आ गई कि शरीर को नियंत्रित करना किससे है? इंद्रियों द्वारा। इंद्रियों के ऊपर कौन है? उसको नियंत्रित करने वाला मन, और मन को नियंत्रित करने वाला कौन है? दिमाग। तो इस तरह से, और अब दिमाग को नियंत्रित करने वाला कौन है? तो कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको परमात्मा का अंश कहते हैं, कुछ लोग उसी को चित्त कहते हैं, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक चिप्स पड़ी हुई है जो हमेशा बताता है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और ये एक इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर की भांति काम करता है। जब दिमाग कुछ गलत काम अपने मर्जी के अनुसार करने लगता है, मन के बहकावे में आकर के करने लगता है, तो चित्त कहते हैं सावधान, रुको, ये तुम गलत कर रहे हो। और वो जैसे ही सावधान देता है, तो जो जिसका सेंस, जिसका संस्कार, जिसके माँ बाप, जिसके घर परिवार से अच्छा उसको बताया गया है, उसको अच्छा सेंस दिया गया है, अच्छे वातावरण में उसको पाला गया है, वो बच्चा तुरंत उससे सावधान होता है और चित्त के कहे अनुसार एक नियंत्रण खोजता है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाना तो आसान नहीं है, क्योंकि ये तो यंत्र मात्र हैं। अब उसको नियंता हो जाता है मन। तो मन को कंट्रोल करना है क्या चीज़ से? कि छोटे छोटे प्लेजर में मन न बहके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमको मिला हुआ है प्लेजर का भी गुण। प्लेजर सीकिंग हम हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मन जो है वो छोटे छोटे प्लेजर्स के ऊपर जाता है। लेकिन जेंटलमैन, माय सन, यू शुड नोट इट डाउन कि ये छोटे छोटे जो प्लेजर हैं, ये ऑलवेज कॉस्ट यू इन फ्यूचर। So we should not run after छोटे छोटे प्लेजर, we should go for the happiness। हैप्पीनेस जो है वो इंटायर बॉडी में, समग्र रूप से पूरे शरीर से निकलता है, एक एक रोआ प्रसन्न होता है। और वो तभी होता है जब संस्कार द्वारा संस्कारित लड़का अपने संस्कार के अनुसार कार्य करता है, जो दूसरों के लिए भी हितकारी होता है। तब उसका एक एक रोआ जो है वो पुलकित होता है, तब उसका मन भी, चित्त भी प्रसन्न होता है। और इसी को कायस्थों ने इसी चित्त का नाम दिया है चित्तगुप्त, जो कि अपभ्रंश होकर के चित्रगुप्त में बदल गया। और कहते हैं कि यही चित्तगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा करता है, आपके मन के भ्रांतियों का लेखा जोखा करता है। सो कायस्थ जो जाति है इस संसार में उपस्थित, इन लोगों का काम है चित्त की ही पूजा करना। सो माय सन, I would like to request you, I wish that you should follow your चित्त rather to your इंद्रियां। और मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सभी बच्चे, आप जितने भी हो मेरे सामने, मेरे समक्ष जितने भी बैठे हुए हो, सबके लिए मैं विश करता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा दी गई संस्कृति को न भूलें, उसके संस्कारों को न भूलें। आज जो है एक थोड़ी सी जरूर दुर्दशा बन गई है कि एकल परिवार में हम लोग आ गए हैं। एकल परिवार में जो है संस्कार जो है उस तरह से नहीं मिल रही है जैसे ज्वाइंट फैमिली में मिल रही थी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का 10 आदमी था तो 10 कंधे उस बच्चे को मिलते थे, और उस 10 कंधे पर पाठ पढ़ता था, और वही 10 कंधा उसको गांव में घुमाता था, तो 10 कंधा से 100 कंधा पड़ जाता था और 100 गुण सीखता था। लेकिन आज वो दायरा सिमट करके माँ बाप तक आ गया है। रदर अगर मैं कहूँ कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी कंधा, माँ का भी कंधा छूट रहा है, वहाँ मिल रहा है आया का कंधा। और आया जो है वो पेड स्टाफ है, पेड स्टाफ के द्वारा कभी भी खेती नहीं हो सकती है। तो ये तो अपने बच्चों की खेती है जो माँ बाप कर रहे हैं। उन माँ बाप से मैं फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ अपने घर की खेती अपने बाल बच्चों को अपने कंधों पर रखें, किसी आया के आश्रम में न डालें, क्योंकि वहाँ से उनकी जो है
दुर्गति शुरू होगी। हम एक गलत नागरिक देने जा रहे हैं समाज को। सो उनको उच्च शिक्षा देना है, उनको संस्कार वाला बनाना है। या तो भारत के उस पुरानी पद्धति में आ जाइए जो आज हजारों साल से दूषित किया जा चुका, अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो संस्कृति लूट ली गई, उसको वापस लावें गुरुकुल संस्थालय में, जहाँ पर कि पहले कंसंट्रेशन और संस्कार से ही शुरू होता था पढ़ाई। या तो वो लावें, या आज एकल परिवार छोड़ करके ज्वाइंट फैमिली में आ जाएं, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, जब तक वो 5 साल की उम्र तक है, तब तक कृपया उसको अपने हाथों से पालन करें, किसी और के कंधे पर न डालें। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, और एक लाइन सस्ता सुंदर टिकाऊ बने रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें, सफल हों। धन्यवाद। और बेटा आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी एक और चीज़ को क्लियर कीजिए। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात तो हमसे कही, लेकिन 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है वो तो हमारे ऑडियंस अगला ये मैं बता दूंगा। हाँ, क्योंकि 5 कर्मेंद्रियाँ भी बहुत जरूरी हैं जो ज्ञान अगले एपिसोड में मिलके काम करती है। एनीवे, आई थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिन्हा। You gave us an excellent lecture on this topic, how to control on the eve of self organs, sense organs. And with these words, I, Dr. Gopal Verma, I invite you to join our lectures day by day like this. Thank you very much. कितना मिनट हुआ बेटा?